Welcome in trigonometry part 2. In part 1, means in previous part, we discussed about trigonometrical ratios and relationship among the trigonometrical ratios. I hope you have understand what are trigonometrical ratios and relationship among them, and you also remember the relationships. By using those relation, one trigonometrical ratio can be converted into other. In this part, we want to solve some problems based on your trigonometrical ratios. So we take problems in such a way that problems will help to solve your exercise problems, as well as we take some outside problems also. So first of all, let us take problem number 1. Problem number 1 is, let us take from your exercise, I am taking this. In a triangle ABC, angle B is right angle. AB equal to given 24 centimeter. BC equal to 7 centimeter and AB equal to 24 centimeter, BC equal to 7 centimeter. Determine sin A cos C. Sin A and cos C. This is what is your question. It is from your textbook also. So try to understand this first sum for you. In a triangle ABC, there is a triangle ABC. Angle B is a right angle. Means obviously your triangle is like this. B is right angle. Means B is 90 degree. Means obviously A will come this side, AB, and this side it will be C. If there is a right angle triangle, then the side opposite to 90 is always taken as hypotenuse. This is hypotenuse, and these two will be perpendicular and base. For this angle, this is perpendicular. For this angle, this is perpendicular, and remaining will be the base. It is given AB equal to 24 centimeter. This side is given 24 centimeter and BC is given 7 centimeter. ये आपको 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है. आपको डिटरमाइन करना है साइन ए एंड कॉस सी. साइन ए मीन्स साइन ऑफ एंगल ए, कॉस सी मीन्स कॉस ऑफ एंगल सी. दिस इज कॉल्ड एंगल ए. ये वाला जो है ना, इसको बोलते हैं एंगल ए. दिस इज एंगल सी. ओके, I hope you have understand the question, what is given and what are to be calculated. In this right angle triangle, your AB is 24 centimeter, BC is 7 centimeter. Can you find AC? Here AC is the hypotenuse. AC is hypotenuse, so AC square will be AB square plus BC square. In a right angle triangle, always hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. This we already discussed in part 1 also. Okay, so AB is given 24, so 24 square plus BC is 7, so 7 square. 24 square, how will you calculate? 4 square 16, 6, carry over 1. 4 to the 8, double it, 16, 16 plus 1, 17, 7, carry 1, 2 square, 4 and 1, 5. In this way you can find square of 24.
square of 2-digit number, 3-digit number, cube of 2-digit number, 3-digit number, multiplication of 2-digit to 2-digit, 2-digit to 3-digit. These things have been discussed in Maths Magic. My videos are there in the name of Maths Magic. There you go in the YouTube and try to get this squaring, cubing, square root in a faster way. How can we do this calculation in a faster way? These things have been discussed. So you must go through Maths Magic for faster calculation. Understand how 24 square? Once again see, 4 square 16, 6 carry 1, 4 to the 8, double it 16 and plus 1 which was carry 17, 7 again carry 1, 2 square 4 plus 1 5 plus 7 square, it is 49, add 9 6 15 5 carry 1 5 and 7 12 2 carry 1 5 1 6. AC square is 625. So what will be AC? AC other side ये रूट हो जाता है. Square root of 625 is 25. You should know that 25 square is 625. So square root of 625 will be 25. Otherwise you have to calculate square root of 625 as you have calculated in class 8, or as I just now I said, go to the Math Magic. There it is discussed how to find square root in a faster way. Okay. So AC is 25. 25 means these two are in centimeter. So this will also be in term of centimeter. Now in this right angle triangle, all the three sides are available. So now find sine A. Sine A means it is the ratio of perpendicular and hypotenuse for angle A. एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो है साइन ए. तो ये है आपका एंगल ए. इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर होगा ये जो एंगल लेते हैं उसका सामने वाला साइड. द साइड ऑपोजिट टू द एंगल इज टेकन एज परपेंडिकुलर. सो फॉर एंगल ए बीसी इज परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर कौन होगा? बीसी. और हाइपोटेनस तो फिक्स है, 90 का सामने वाला हाइपोटेनस होता है एसी. समझ गए बात? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. बीसी इज 7 एंड एसी इज 25. देखिए ये भी सेंटीमीटर था, ये भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया है. साइन ए इज ए रेशियो, और रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है. वेन एवर वी राइट ए रेशियो इट इज ए complete solid number. There will be no unit at all. So sine A is 7 by 25. This much. And what is next? Cos C. Let us find cos C. Cos C means cos of angle C. It means it is the ratio of base and hypotenuse for angle C. This is angle C. For this angle, this will be perpendicular. The side opposite to the concerned angle or considered angle will be taken as perpendicular. हम लोग यहाँ C एंगल ले रहे हैं ना, तो इसके लिए सामने वाला साइड AB ये होगा परपेंडिकुलर. ये तो हाइपोटेनस फिक्स है, तब ये होगा बेस. थर्ड वाला बेस होता है, तो cos C होता है बेस बाय हाइपोटेनस. तो C के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस. BC आपका बेस होगा C एंगल के लिए, और हाइपोटेनस तो वही रहेगा AC. BC 7 एंड AC दोनों सेम होगा. साइन A cos C both will come 7 by 25. So I hope you have understand the problem. Now come to question number 2. Question number 2 is, if angle A and angle B are एक्विट एंगल मतलब जो 90 डिग्री से छोटा एंगल होता है उसको एक्विट एंगल बोलते हैं.
एक्विट एंगल्स. एंगल A and एंगल B are एक्विट एंगल्स सच दैट इस तरह से है ये दोनों एंगल कि cos A इक्वल टू cos B, मीन्स एंगल A का cos और एंगल B का cos इक्वल है. देन सो दैट शो दैट, तो आपको दिखाना है कि एंगल A इक्वल टू एंगल B. ये है आपका क्वेश्चन. ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वंस अगेन. इफ एंगल A एंगल B आर एक्विट एंगल, एक्विट एंगल मतलब ये ट्रायंगल में ही है. एंगल A एंगल B आर एक्विट एंगल इन ए ट्रायंगल. ओके, सच दैट cos A इक्वल टू cos B, देन यू हैव टू शो एंगल A इक्वल टू एंगल B. देखिए एक ट्रायंगल है जिसमें एंगल A एंगल B एक्विट एंगल है, तो कैसे होगा? ऐसे. ये मान लीजिए एंगल A है और ये B है और इसको आप 90 डिग्री ले लीजिए. C A B C ऐसे ले लीजिए. ये 90 डिग्री है तो जरूर ये दोनों एक्विट एंगल होगा, क्योंकि तीनों का सम 180 होना है. ये 90 अकेले हो गया तो ये दोनों 90 से कम होगा, मतलब दोनों एक्विट एंगल होगा. सो हियर इन दिस फिगर एंगल A एंड एंगल B आर एक्विट एंगल एंड इट इज गिवन cos A इक्वल टू cos B. एंगल A का cos और एंगल B का cos इक्वल है. इट इज गिवन, ऐसा दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में कि एंगल A का cos इक्वल टू एंगल B का cos. Cos of angle A equal to cos of angle B. What does it mean? Cos of angle A, its cos. Cos is base by hypotenuse. For this angle, angle A, this is perpendicular, this is base, and hypotenuse is fixed opposite to 90. Right? So for this angle A, this is perpendicular, base is AC, and hypotenuse is AB. ओके, एंड cos B, इस एंगल के लिए cos, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, एंगल का सामने वाला ये परपेंडिकुलर, ये तो हाइपोटेनस है, तो ये बेस हो गया आपका. तो cos B होगा बेस बाय हाइपोटेनस. cos ये B एंगल के लिए बेस हो जाएगा BC और हाइपोटेनस तो वही रहेगा AB. आई बात समझ में? दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो गया AC बाई AB. अब इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा BC बाई AB. ये AB कैन बी कैंसल्ड. सो व्हाट आर यू गेटिंग? AC इक्वल टू BC. व्हाट इज AC? दिस साइड इज योर AC एंड BC मीन्स ये है. इस ट्रायंगल में ये दोनों साइड इक्वल है. यू हैव रीड इफ इन ट्रायंगल, इन ए ट्रायंगल एनी टू साइड्स आर इक्वल, द एंगल ऑपोजिट टू देम आर ऑल्सो इक्वल. ऐसा पढ़े हैं 9 क्लास में. एक ट्रायंगल है, इसमें ये दोनों साइड अगर बराबर है तो इसका ऑपोजिट एंगल ये और इसका ऑपोजिट एंगल ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होगा. अगर दो साइड बराबर है तो उनका ऑपोजिट एंगल भी बराबर होगा. तो ये ट्रायंगल है ABC, इसमें ये साइड बराबर है, तो इसका ऑपोजिट एंगल B और इसका ऑपोजिट एंगल A, ये दोनों इक्वल होगा. तो यहां से हम लोग AC का ऑपोजिट एंगल B इक्वल टू BC का ऑपोजिट एंगल A. So in this way we can say angle A and angle B will be equal. So I think you have understand this sum. Let us see few more problems. Let me rough. This was a very good problem. It is there in your NCERT textbook.
let me solve some easy and question from your textbook, then after we solve varieties of questions which are beyond the NCERT textbook, है ना. दूसरे बुक से भी प्रॉब्लम बनाएंगे. पहले आप एलिमेंट्री प्रॉब्लम समझ लीजिए, पूरा जब कॉन्सेप्ट हो जाएगा तब फिर डिफिकल्ट प्रॉब्लम भी बनाएंगे, है ना. सो let us see next problem. Next problem is if question number, you can, I will not solve each and every problem of your textbook, okay. Whatever important questions are there or difficult questions are there, those problems I will solve, and then after the remaining problems you will solve by your own. Number 3, if sec theta is equal to 13/12, calculate all other trigonometrical ratios. Calculate all other trigonometrical ratios, है ना. If sec theta equal to 13/12, calculate all other trigonometrical ratios. One trigonometrical ratio is given, sec theta. Question is calculate all other trigonometrical ratios. Means sec theta is given, you have to calculate sin theta, cos theta, tan theta, cot theta. Sec theta is already there, cosec theta. बात समझ गए. एक sec theta दिया हुआ, बाकी सब आपको निकालना है. sin theta, cos theta ये सब निकालना है. So I think you have understand the question. Now see, there are two ways to solve this type of problem. One is directly by using trigonometrical relations, and there is another way by using ratios. Let us see one by one. First of all, sec theta given, you have to find all other trigonometrical ratios. You can use relationship among the trigonometrical ratios. Given sec theta equal to 13/12, okay, sec theta can be written as 1 by cos theta, because cos theta into sec theta is 1. So sec theta can be written as 1 by cos theta, or you can say cos theta can be written as 1 by sec theta, is not it? So 1 by sec theta means it is 12/13. Sec theta is given 13/12. Cos theta can be written as 1 by sec theta, 1 by 13/12, so it will be 12/13. So in this way cos theta, you have got cos theta. Cos theta का वैल्यू आपको मिल गया, एक आ गया ना. Okay. Now how will you calculate sin theta? Sin theta can be written as root under 1 minus cos square theta. We have discussed in part 1 that sin square theta plus cos square theta is 1.
So sin square theta equal to 1 minus cos square theta. So sin theta equal to root under 1 minus cos square theta. So in this way, if cos theta is given, we can find sin theta. So we can write root under 1 minus cos square theta means 12 by 13 x square. Okay. So it is 169, it is 144. So 169 minus 144, it will gives you 25. 25 by 169. So it will gives you 25 root 5, 169 root 13. So it will gives you 5 by 13. Okay. In this way, first sec थीटा दिया हुआ था, cos थीटा निकल गया, cos थीटा निकल गया तो फिर sin थीटा निकाल लिया हम लोग. तो sin थीटा cos थीटा came. Now can you find tan theta? Tan theta can be written as sin theta by cos theta. ये भी हमारा रिलेशन है ना. sin theta as 5 by 13, cos theta 12 by 13. So this will be 5 by 13 into कर देने से ये 13 by 12 हो जाएगा, है ना. So this will gives you 5 by 12. So in this way tan theta is calculated, 5 by 12. Also cot theta. Cot theta can you write 1 by tan theta? We read the relation tan theta into cot theta is 1. So cot theta can be written as 1 by tan theta. So 1 by tan theta means tan theta is 5 by 12. So cot theta will be 1 by tan theta, 1 by 5 by 12. So it will be 12 by 5. This will be your cot theta. Sec theta is already there, no need to calculate. Cosec theta. Cosec theta can be written as 1 by sin theta. 1 by sin theta. Sin theta is 5 by 13. So cosec theta will be 13 by 5. In this way, we can calculate all the trigonometrical ratios. If any one given, we can find any other trigonometrical ratios. This is one way of calculating the values of trigonometrical ratios. If one trigonometrical ratio, we can calculate other. Now let us see another way. You should understand both the way, and then after you can solve by your own. Let me rough this. The same problem, we solve it in another way. देखिए, लिखने का टाइम नहीं दिया जा रहा है, आप उसको, ये तो वीडियो फॉर्म में है ना, तो उसको आप वीडियो को रोक के भी आप लिख सकते हैं. ठीक है, आपको इसे लिखना है, आप वीडियो को रोक लीजिए और फिर नोट कर लीजिए. See, the second method you can say to solve this type of problems. See, it is given sec theta equal to 13 by 12 ये दिया हुआ. Okay. We know sec theta equal to hypotenuse by base. Sec theta होता है hypotenuse by base. So you will write let hypotenuse, ये hypotenuse by base है ना, तो in place of hypotenuse it is 13, in place of base it is 12. So you will write let hypotenuse equal to 13 के रेशियो में लीजिए, k 13 का मल्टीपल होगा, एंड बेस equal to 12k in this way.
ये जैसा सेक थीटा होता है ना, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेनस बाई बेस, तो हाइपोटेनस हम लोग ले लेंगे 13 के और बेस ले लेंगे 12 के। समझ गए बात? हाइपोटेनस बेस हो गया, बचा क्या? परपेंडिकुलर, तो आप परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। परपेंडिकुलर इज रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ये तो रिलेशन आप कल से पढ़ रहे हैं। परपेंडिकुलर स्क्वायर इज हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, सो परपेंडिकुलर इज स्क्वायर रूट ऑफ हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। नाउ हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस इज 13k, इट्स स्क्वायर माइनस बेस 12k, its square and its square root. So it is 13 square 169 k square minus 12 square 144 k square. So if you subtract, it will gives you 25 k square. So 25 root is 5, k square its root k. So in this way we assumed hypotenuse 13k, base 12k and perpendicular calculated 5k. So now perpendicular, base and hypotenuse, all the three sides are available. दो था, हम लोग लिए थे k के टर्म में, थर्ड निकाल लिए। अब जो निकालना है आप निकाल लीजिए। If you want to sin theta, sin theta is perpendicular by hypotenuse, perpendicular 5k by hypotenuse 13k, k cancel, 5 by 13. Okay. If you want to find cos theta is base by hypotenuse, base is 12k and hypotenuse is 13k, so it is 12 by 13. If you want to find tan theta is perpendicular by base, perpendicular is 5k, base is 12k, so it is 5 by 12. Cot theta will be just its reverse, you can find yourself. Sec theta is already there. Cosec theta, hypotenuse by perpendicular, hypotenuse is 13k by perpendicular 5k, so it will be 13 by 5. So in this way, if one trigonometrical ratio given, you can find all other trigonometrical ratios. एक दिया रहेगा तो दो मिल जाएगा, इस तरह से थर्ड निकाल लेंगे। थर्ड निकालने के बाद जो त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियोज आपको निकालना है उसको आप निकाल सकते हैं। लेट अस सी फ्यू मोर प्रॉब्लम्स। कुछ और बनाते हैं इस तरह से कि आपका फर्स्ट चैप्टर जो भी एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज वो बन जाए पूरा। त्रिकोणोमेट्री फर्स्ट एक्सरसाइज you have to solve then after. So see, let us take one more question. In this was third number question. Now take fourth one. Question number 4. In triangle PQR, in triangle PQR, right angled at Q, right
right angled at Q. PR plus QR. PR plus QR is given 25 centimeter. 25 centimeter. And PQ is given 5 centimeter. Okay. Find करना है आपको sin P, cos P, tan P. You also find sin R, cos R and tan R. You find all these things. This is what is your question. In triangle PQR, there is a triangle PQR, right angled at Q. There is a triangle, right angled triangle, right angled at Q. 90 डिग्री है Q पर. Q is your right angle. So obviously take this side P, Q, R. Okay. It is given PR. Given PR plus QR equal to 25 centimeter. PR, this is PR, plus QR, sum of these two is given 25 centimeter. And what is given? PQ. ये PQ is given 5 centimeter. देखिए PR प्लस QR ये दोनों का सम is given 25. You have to find sine of angle P, cos of angle P, tan of angle P, then sine of angle R, cos of angle R and tan of angle R. Okay. You should keep in your mind, in order to find trigonometrical ratios in a triangle, right angle triangle, you should have all the three sides, perpendicular, base and hypotenuse. After getting all the three sides, you can find any trigonometrical ratios. So only this side is given, sum of these two given or not. We have to find first all the three sides. PQ is already there, QR and PR you have to calculate. PR is given this 25, take it equation number 1. PR plus QR is given 25, we are keeping it as equation number 1. Can you write, say this very carefully, PR square minus QR square, can you write this? ये क्या है बोलिए तो? In this triangle PR is your hypotenuse. So hypotenuse square can be written as perpendicular square plus base square. Can you write? This side square equal to this side square plus this side square. PQ square plus QR square. And from there PR minus QR. PR square minus QR square can be written as PQ square. इसको इधर ले आए QR को, तो PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर हो गया इक्वल टू PQ स्क्वायर. एंड PQ स्क्वायर, अच्छा ओके, नाउ वी यूज दिस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, होने से ये होता है A प्लस B इंटू A माइनस B. वी यूज दिस algebraic identity here. This is of the type A square minus B square. So A plus B means PR plus QR into A minus B, PR minus QR. This is A, this is B. Then A square minus B square, A plus B, then A minus B.
and PQ is given 5 centimeters, so 5 square 25. Okay. Also PR plus QR is given in your question. ये भी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है. PR plus QR 25. So 25 into PR minus QR equal to 25. ये 25 कटेगा and you will get PR minus QR is equal to 1. कट जाने से 1 होता है. इक्वेशन नंबर 2. Keep it as equation number 2. Now you see question number 1 and 2 carefully. This is PR plus QR 25. This is PR minus QR 1. Adding equation 1 and equation 2. ये दोनों को आप जोड़ेंगे तो क्या होगा. यहाँ QR माइनस में है, यहाँ QR प्लस में है, यहाँ QR माइनस में है. तो जब इससे इसको जोड़ेंगे तो ये QR कट जाएगा और PR ये डबल हो जाएगा 2PR. और इधर 25 और 1 को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो 26. दिस विल बी 26. सो you can write PR equal to 26 by 2 means 13 centimeter. Where is PR? ये आपका निकल गया 13 centimeter. Now by substituting the value of PR either here or here, you can get the other side also. Again you write from 1. Equation 1 से देखिए तो PR निकल गया 13 प्लस QR इक्वल टू 25. तो यहां से आप QR निकाल लेंगे. QR विल बी 25 माइनस 13 12. तो ये आ जाएगा आपका QR 12 सेंटीमीटर. इन दिस वे ऑल द 3 साइड्स, ये दोनों का सम दिया हुआ था ना, ये तीनों साइड निकाल लिए. ये 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर. नाउ यू कैन फाइंड एनी त्रिकोणोमेट्रिकल रेशियो फ्रॉम दिस ट्राइंगल. आप जैसे आपको निकालना है साइन P. साइन P मीन्स साइन ऑफ एंगल P मीन्स रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस फॉर एंगल P. ये P एंगल के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो. P एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और हाइपोटेनस तो फिक्स है, ये बेस होगा. तो साइन P परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मीन्स 12 by 13. समझ गए. cos P बेस बाय हाइपोटेनस. एंगल P के लिए ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये है बेस बाय हाइपोटेनस 5 by 13. और 10P परपेंडिकुलर बाय बेस, इसके लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, तो 12 by 5. और साइन R क्या होगा? अगर साइन R निकालना हो, ये शायद बुक में नहीं है लेकिन सीख लीजिए आप. इसका साइन लीजिए. इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है. एंगल R के लिए ये परपेंडिकुलर. तो साइन R जब लेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस फॉर दिस एंगल, तो फॉर दिस एंगल परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेनस 13. तो ये हो जाएगा 5 by 13. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड. नाउ cos R बेस बाय हाइपोटेनस. इस R के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस 12 by 13 एंड 10R. ये R के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस 5 by 12. In this way we can find sin P, cos P, 10P, sin R, cos R, 10R. I hope you have understand the
problems. Now one more problems, let us see. Then one very small topics I want to discuss, so that the entire first exercise you will be able to solve. So few minutes, hardly 10 minutes more, you see, so that your first exercise may be completed. Let me write the question. One more question. Let's take. In triangle ABC, right angled at B. This is question number 5. In triangle ABC, right angled at B. Right angled at B. If tan A equal to 1 by root 3, if tan A equal to 1 by root 3, फाइंड, आपको फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी. ये है आपका क्वेश्चन. Note down the question. Let me rough this part. Last question. Then after you will be able to solve the remaining problems. These were some good question and tricky question. Remaining questions are simple one. So one by one you will solve all the problems of your first exercise. Let us see this. In triangle ABC, right angled at B. There is a triangle ABC right angled at B. What does it mean? In this way there is a triangle which is right angled at B, means angle B is 90 degree. It is A, B, C. In this way you take. Okay. Tan A is given 1 by root 3. Tan A is given 1 by root 3. Find sin A cos C, cos A sin C. See, it is given tan A means tan of angle A, angle A का tan दिया है 1 by root 3. Okay, where is angle A? This is angle A. Tan A, for this angle this will be perpendicular. ये बेस और ये है हाइपोटेनस. तो tan A होता है perpendicular by base. So you will write let for this angle, this is perpendicular BC, so you will write let BC equal to 1k. tan A है ना perpendicular by base. Here you can write simply it is of the type BC by, let it be. In this figure if you write tan A, it is BC by AB. एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है tan A. Therefore you will write simply let
BC इक्वल टू 1K एंड AB इक्वल टू √3K। BC के जगह पर 1 है ना, तो उसको BC को 1K लेंगे और AB को √3K। ये हो गया आपका 1K और ये है √3K। तो ये निकाल लीजिए। AC विल बी रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AC इक्वल टू रूट अंडर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AB स्क्वायर √3K इट्स स्क्वायर प्लस 1K इट्स स्क्वायर। ओके, √3K स्क्वायर, √3 स्क्वायर 3K स्क्वायर इज K स्क्वायर and 1K square is K square, that is root 4K square. Square root of 4 is 2, square root of K square is K, स्क्वायर और रूट दोनों हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2K। तो ये आपका आ जाएगा 2K। AC विल कम 2K। चलिए तीनों साइड हो गए, हमेशा तीनों साइड पहले निकालना। ये था √3K 1K, ये हो गया 2K। अब ये सब निकाल लीजिए, चलिए डायरेक्ट निकालिए ना। आपको निकालना है साइन A cos C प्लस cos A इंटू साइन C। इट्स वैल्यू यू हैव टू कैलकुलेट। टेक साइन A, इसका साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इसके लिए ये है परपेंडिकुलर 1K और हाइपोटेनस 2K। cos C, ये है एंगल C एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस है। cos C बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस 1K बाई 2K। समझ गए? cos A, इसका cos बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय हाइपोटेनस, इसके लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस है, बेस बाय हाइपोटेनस, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। साइन C, इसका साइन बोल रहा है, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। फॉर दिस एंगल दिस इज परपेंडिकुलर, ये C एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेनस ए हो गया। सब में K कट जाएगा, K सब कट जाएगा, तो ये 1/4 हो जाएगा यहाँ, प्लस ये K सब तो हट गया, √3 इंटू √3 3 और नीचे 2 इंटू 2 4। तो एलसीएम 4, इस 4 को इस 4 से डिवाइड करेंगे, 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4 को इस 4 से डिवाइड कीजिए, 1 इंटू दिस 3, so 1 plus 3 4/4, so it is 1. Okay, so this was your sum. Now only 5 minutes you wait, let us see. Very important result is there. By using these results, some questions are given in your first exercise, those questions will be solved. So patiently see, only 5 minutes more. इसको भी मिटा देते हैं। See one thing, what I want to discuss.
देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कोई एंगल है, this angle is theta. From here take any point and draw a perpendicular. Okay. For this theta angle, अगर ये एंगल कंसीडर करते हैं तो this will be perpendicular. The side opposite to the angle is perpendicular. This is 90, so this is hypotenuse and this is base. There is no confusion at all. Now you should always keep in your mind, in a right angle triangle hypotenuse is always greater than perpendicular as well as base. राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता है ना, ये परपेंडिकुलर और बेस दोनों से बड़ा होता है. हाइपोटेनस इज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर एज वेल एज हाइपोटेनस इज ग्रेटर देन बेस. ये बात आप समझ गए. हाइपोटेनस हमेशा बड़ा साइड होता है, राइट. अच्छा, साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस. ये रेशियो है, इस रेशियो को बोलते हैं साइन थीटा. ये भी पता है आपको. अब इस रेशियो में हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में, ये हाइपोटेनस बड़ा है परपेंडिकुलर से, ये बड़ा है, ये छोटा है, ऊपर छोटा है. ये एक फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो तो क्या होता है? वो नंबर एक से छोटा होता है. इफ न्यूमरेटर इज लेस डिनोमिनेटर इज ग्रेटर, then this ratio is always less than 1. So sin theta का value, sin theta is always less than 1. In particular case this may be equal to this. देखिए एक चीज आप जान लीजिए, ये थीटा है ना, ऐसे मान लीजिए ये थीटा एंगल थोड़ा और बढ़ जाए, ऐसे तो ऐसे आएगा ना परपेंडिकुलर, थोड़ा और बड़ा हो जाए यहां तक तो आपका परपेंडिकुलर ऐसे आएगा. नहीं, ये थीटा एंगल हो गया. जब ये थीटा एंगल पूरा 90 का हो जाएगा, जब ये थीटा एंगल एकदम स्ट्रेट हो जाएगा 90, तो आपका ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों सेम हो जाएगा. देखिए ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस था ना, जब एंगल बढ़ गया तो ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर. जरा यहां साफ साफ देखिए, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनस, दिस इज एंगल थीटा. अब ये थीटा एंगल बढ़ के यहां आ गया, मान लीजिए इतना बड़ा हो गया थीटा, तो ऐसे आएगा ना. ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस. तो ये थीटा जब पूरा 90 हो जाएगा, थीटा जब एकदम 90 डिग्री हो जाएगा, तो उस केस में ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस ये दोनों बराबर हो जाता है. परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस बोथ विल बिकम इक्वल इन केस ऑफ 90 डिग्री. समझ गए? तो 90 डिग्री अगर थीटा होगा तो उस केस में ये दोनों इक्वल होगा. ये दोनों जब इक्वल होगा तो ये 1 होगा. इक्वल होने से 1 हो जाएगा ना, कट जाएगा. तो इन दैट केस this may be equal to 1. And so why sin theta, value of sin theta is always less than 1, or in case of 90 it may be equal. sin theta का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होगा, 90 डिग्री के केस में इक्वल हो सकता है. So sin theta is always less or equal to 1. कहीं पर भी sin theta का जो वैल्यू होगा ना, वो 1 से छोटा होना चाहिए. जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है साइन थीटा इक्वल टू 5/4. इज इट पॉसिबल? साइन थीटा का वैल्यू 5/4 हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होना या 1 हो सकता है. साइन 90 के केस में 1 होगा.
तो साइन थीटा का वैल्यू ये 5/4 माने ये 1 से बड़ा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। साइन थीटा कैन नॉट बी रिटन एज 5/4। साइन थीटा का वैल्यू जो भी लिखते हैं उधर वो 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। बात समझ गए? कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है। और राइट एंगल ट्रायंगल में बेस हमेशा हाइपोटेनस से छोटा होता है। हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से भी बड़ा होता है और बेस से भी बड़ा होता है। ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ये भी। और जरा देखिए यहाँ, यहाँ देखिए, चलिए 2 मिनट और पेशेंसली देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखिए ये एंगल है थीटा, ये है आपका परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये है हाइपोटेनस, ठीक है। मान लीजिए एंगल थोड़ा बड़ा हो गया और यहां तक आ गया, तो देखिए ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। बेस देखिए घट गया और ये होगा हाइपोटेनस, और छोटा हो गया ऐसे, तो क्या होगा? बेस और छोटा होगा, ठीक है। 90 के केस में बेस 0 हो जाएगा। 90 के केस में घटते घटते बेस 0 हो जाएगा। नहीं समझ रहे बात? देखिए इसको फिर से देखिए, 2 पहलू हैं इसमें, फिर से आप देखिए। ये है ना बेस, ये है हाइपोटेनस। एंगल बढ़ गया, यहां तक चला आया, तो बेस छोटा हो गया। एंगल और बढ़ गया, बेस और छोटा हो गया। जब एंगल आपका थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, तो उस केस में आपका बेस जो है ना वो एकदम 0 हो जाएगा। ये बात समझे? दूसरा, यहां देखिए, ये है थीटा एंगल, ये है आपका बेस, ये है हाइपोटेनस और ये है परपेंडिकुलर। वो तो एंगल को बढ़ा रहे थे ना, एंगल को घटाइए। मान लीजिए एंगल इतना हो गया, तो ये आपका परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर घट गया, बेस बढ़ गया। देखिए ये हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका हाइपोटेनस। एंगल और छोटा कर दिए, ऐसे हो गया। तो ये यहां से ये पूरा आपका हो गया बेस और यहां से यहां तक हाइपोटेनस, ये हो गया परपेंडिकुलर। जब एंगल को आप एकदम घटा के 0 कर दीजिएगा, तो उस केस में ये बेस और उसका हाइपोटेनस ये दोनों इक्वल हो जाएगा। कब? जब एंगल को घटाते घटाते पूरा 0 कर दीजिए। एरो देके 0 करने का मतलब घटाते घटाते पूरा 0 कीजिएगा ना, टेंस टू 0 पढ़ते हैं इसको, एकदम 0 के बराबर, एकदम एग्जैक्ट 0 नहीं, बट क्लोजर एंड क्लोजर टू 0। तो इन दिस केस बेस और हाइपोटेनस दोनों हो जाता है बराबर। तो ये बेस हमेशा छोटा होता है, 0 के केस में इक्वल हो सकता है। तो इन दैट केस दिस विल बी इक्वल टू 1, ये। एंड इन अदर केसेस इट इज लेस देन 1। हमेशा बेस हाइपोटेनस से छोटा है, सो बेस बाय हाइपोटेनस इज ऑलवेज लेस देन 1। 0 के केस में ये दोनों इक्वल हो जाने से 1 हो सकता है। तो इन दिस वे वी कैन से यस cos थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1 एंड मे बी इक्वल टू 1। तो sin थीटा इज लेस और इक्वल टू 1, cos थीटा इज ऑल्सो लेस और इक्वल टू 1। ओके, तो कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है cos थीटा इक्वल टू 3/2, it is not possible because this is more than 1। एक से ज्यादा cos का वैल्यू भी संभव नहीं है। अब आते हैं 10 पर।
दिस इज थीटा, this is perpendicular, this is base, this is hypotenuse. What will be tan theta? Tan theta is your perpendicular by base. इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, आप बढ़ाइए, एंगल को बढ़ाइए, परपेंडिकुलर बढ़ेगा, बेस घटेगा। जैसे एंगल आपका बढ़ गया, यह है परपेंडिकुलर, यह है बेस, यह है एंगल आपका थीटा, एंगल बढ़ गया, इतना हो गया, तो ये परपेंडिकुलर बस बढ़ गया, बेस घट गया, है ना। एंगल बढ़ाते जाइएगा, परपेंडिकुलर बढ़ता जाएगा, बेस घटता जाएगा, ठीक है। तो कहाँ तक बढ़ेगा? बढ़ते बढ़ते ये जब 90 डिग्री हो जाएगा तो उस केस में आपका परपेंडिकुलर तो मैक्सिमम हो जाएगा, हाइपोटेनस के बराबर हो जाएगा, और बेस हो जाएगा 0। इन केस ऑफ 90, जब थीटा का वैल्यू एकदम 90 डिग्री हो जाएगा, उस केस में आपका बेस हो जाएगा 0। तो बेस जब 0 हो जाएगा तो एनीथिंग बाय 0 इंफिनिटी हो जाएगा, समझ गए। तो ये जो है हमेशा लेस और इक्वल टू इंफिनिटी होता है, 1-2 इसका लिमिट नहीं होता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगा? इंफिनिटी तक। कब? 90 के केस में। जब 90 होगा तो आपका बेस एकदम 0 हो जाएगा, ये नीचे वाला जब 0, एनीथिंग बाय 0 इंफिनिटी होता है। कोई भी नंबर बाय इंफिनिटी कीजिएगा तो ये 0 होता है, और एनी नंबर बाय 0 इज इंफिनिटी, है ना। सो tan थीटा का वैल्यू हमेशा इंफिनिटी से छोटा या बराबर होगा, है ना। कुछ भी हो सकता है, जैसे आप tan थीटा इक्वल टू अगर लिखते हैं 8/3, ओके, हो सकता है, ये 1 से बड़ा ये हो सकता है, पूरा इंफिनिटी तक हो सकता है, समझ रहे हैं बात। cot थीटा वैसे ही होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर, ये भी आपका इंफिनिटी तक इसका लिमिट है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ कम टू sec थीटा। सेक समझ लीजिए, सेक कॉसेक एक ही टाइप का, बस ये वीडियो खत्म करेंगे। देखिए ये थीटा एंगल है, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये है हाइपोटेनस। सेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाय बेस, ये है हाइपोटेनस, ये है बेस। हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होता है, ये हाइपोटेनस जो है हमेशा बड़ा होता है, तो ये ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो ये रेशियो 1 से बड़ा होगा, समझ गए। और वो 90 डिग्री के केस में ये बेस आपका पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। और 0 डिग्री के केस में देखिए ये थीटा है ना, ये है आपका हाइपोटेनस, ये है बेस। ये एंगल मान लीजिए छोटा हो गया, इतना हो गया थीटा, तो ये हो गया आपका बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। एंगल और छोटा होगा तो यहां से यहां तक ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। जब पूरा एकदम 0 हो जाएगा, जब आपका एंगल एकदम 0 होगा, तो इस केस में आपका हाइपोटेनस और बेस दोनों इक्वल हो जाएगा। ये दोनों जब इक्वल होगा तो ये 1 हो जाएगा, समझ रहे। तो सेक थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होगा, या तो 1 हो सकता है। कब 1 होगा? और 0 के केस में। 0 के केस में हाइपोटेनस और बेस दोनों जब इक्वल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, अदरवाइज सेक थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा रहेगा। और कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस हमेशा परपेंडिकुलर से बड़ा होता है, तो इसलिए ये भी 1 से बड़ा होगा। और 90 के केस में देख लीजिए, ये थीटा है, ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनस। एंगल बढ़ गया, इतना हो गया, तो परपेंडिकुलर बढ़ गया,
और बढ़ा, परपेंडिकुलर और बढ़ेगा, जब 90 हो जाएगा आपका ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो इस केस में आपका ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों इक्वल हो जाएगा। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों जब इक्वल होगा तो ये 1 का इक्वल होगा, अदरवाइज कॉसेक थीटा हमेशा 1 से बड़ा रहेगा। समझ रहे हैं बात? तो आपको याद रखना है साइन थीटा इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू 1, कॉस थीटा इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू 1, टेन थीटा इज लेस और इक्वल टू इन्फिनिटी, कॉट थीटा इज लेस और इक्वल टू इन्फिनिटी, सेक थीटा इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। सेक थीटा का वैल्यू हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 1 होगा, 1 से बड़ा रहेगा सेक थीटा का वैल्यू। कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है आपका सेक थीटा इक्वल टू 1/2, ये पॉसिबल है? सेक थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा या 1 के बराबर होगा, ये 1/2 तो 1 से छोटा है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका वैल्यू जब भी रहेगा सेक थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा होगा। उसी तरह से कॉसेक थीटा का वैल्यू भी 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा नहीं होता है कॉसेक थीटा का वैल्यू। समझ के बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इन योर फर्स्ट एक्सरसाइज लास्ट में कुछ ऑब्जेक्टिव सम्स दिए हुए, उसमें ये प्रॉपर्टीज आपको यूज होगा। बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टीज यू कैन गिव द आंसर ऑफ दोज क्वेश्चंस। So you should keep in your mind sin theta is always less or equal to 1, cos theta is also less or equal to 1, tan theta and cot theta ये दोनों सेम है, tan theta cot theta both are less than infinity and sec theta and cosec theta both are greater than 1, 1 से ऊपर रहेगा इनका वैल्यू। So these were some results, very very important. I hope you have understand. And in the next part, means in part 3, we see trigonometrical ratios of some special angle। ये जैसे थीटा थीटा था ना, थीटा के जगह पर कुछ स्पेशल एंगल होंगे, जैसे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। we find trigonometrical ratios of those special angles in the next part, means in part 3. So go on watching trigonometry. Thank you for watching.